Good morning, class 9. Today we will continue our chapter 8, distance traveled by a car at a regular interval of time. देखिए अब इसमें टाइम्स इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर्स. जीरो सेकेंड में उसने 0 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में उसने 1, 4 सेकेंड में उसने 4, 6 सेकेंड में उसने 9, से 8 सेकेंड में उसने 16, 10 सेकेंड में 25 एंड 12 सेकेंड्स में 36. उसने कितना किया? देखिए उसने ये तो सब इसने नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसके रेगुलर इंटरवल कम चल रहा है, लेकिन इसमें डिस्टेंस अलग अलग है. तो इसलिए ये देखिए इसका कर्व जो होगा वो ऐसे बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, जिसमें कार क्या हो रही है, जो कार की स्पीड क्या हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि बराबर नहीं है. The distance time graph for a motion of the car is shown in figure 8. For note that the shape of the graph is different from the earlier distance time graph for a uniform motion. The nature of this graph shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown in the figure 8 point represent the motion with uniform speed, non-uniform speed. इसमें देखिए non-uniform speed show कर रहा है. ओके इसमें वेरिएशन हो रहा है, डिस्टेंस में वेरिएशन हो रहा है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है. वेलोसिटी ये अब देखिए इसमें अब 2 सेकेंड्स में ये कितना है, 1 है, तो ये 1. फिर 4 सेकेंड में कितना है, 4 है, तो ये रहा 4. ये पूरा ऐसा आपको डॉट पे चलना है, आपको मार्क करके फिर चलना है. आपको एक या तो यहाँ पे ये वाला कर्व दिखता है या फिर ऐसे कर्व बनता है. Velocity time graph. The variation in the velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. It represented in this graph, the time is represented along the x-axis and the velocity is represented along the y-axis. The object moves at uniform velocity at the height of velocity. Time graph will not change with time. It will be straight line parallel to the x-axis. Figure 8.5 shows the velocity time graph for a car moving with a uniform velocity of 40 km/h. ये देखिए पैरेलल लाइन शो करेगा, T1 से T2 तक जाएगा. ओके फिर इसमें कितनी स्पीड चल रही है, 40 km/h इसकी चल रही है यूनिफॉर्म. तो ये सीधी सीधी ही चलती जाएगी. ओके फिर नेक्स्ट है, we know that the product of the velocity and the time given displacement of an object moving with the uniform velocity, the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. To know the distance moved by the car between time T1 and T2 using figure 8.5, draw the perpendicular from the point corresponding to the time T1 and T2 on the graph. The velocity of the 40 km is represented by the height AC or BD. The velocity of the time 40 km is represented by the height AC and or BD, and the time T2 minus T1 is represented by the length AB. So the distance moved by the car in the time T2 minus T2 to T1 be expressed as S equals to AC into CD. 40 into T1 minus T2 hour, 40 T1 minus T2 kilometer. Area of the rectangle ABCD shaded in the figure 8.4. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हाइट दी हुई AC और BD, इसकी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है. इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इस हाइट में. फिर आता है टाइम T2 से लेकर वो T1 तक आया, तो कितना हुआ वो कहाँ पे है. ओके अभी इसमें टाइम फिक्स नहीं दिया हुआ इंटरवल पे, यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं दिया हुआ. ये देखिए डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ना. तो स्पीड इनटू टाइम से, ये रहा स्पीड और ये रहा टाइम. ओके नेक्स्ट आता है, वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्मली टाइम ग्राफ. कंसिडर a car being driven a straight route for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver record the velocity after every 5 seconds by
noting the reading of the speedometer of the car, the velocity of the car in the kilometer per hour as well as in meter per second at different instants of time is shown in table 8.3. देखिए मीटर पर सेकेंड में इसके 0 0 0, फिर 5, 2.5 मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में 9 हुए, फिर 10 में 5 हुई, फिर किलोमीटर पर आवर में 18, ऐसे ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसमें कितनी बढ़ रही है? 2.5 बढ़ती जा रही, 2.5 सब में बढ़ती जा रही है। और इसमें कितनी बढ़ रही है किलोमीटर पर आवर में? 999 करके बढ़ती जा रही है। फिर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए आप कैसा बनता है। इन दिस केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ द मोशन कार इज शोन इन फिगर 8.6। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ equal interval of time. Thus, for all uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. ये देखिए इसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन होती है। कि फिर आता है यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द distance magnitude of the displacement moved by the car in given interval of time. If the car would have been moving with the uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to the acceleration, the distance as traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph. That is area ABCDE. The area of the rectangle ABCD plus area of the triangle VDADE AB into BC plus half AD into DE। देखिए तो ये वाला जो एरिया होगा शेडेड पार्ट वाला, तो पहले आपको ये फाइंड करना है, स्क्वायर इसका फाइंड करना है ट्रेपेजियम का। तो इसमें क्या करना है, पहले तो स्क्वायर का फाइंड करना, फिर रेक्टेंगल का, तो इसका पूरा का एरिया आ जाएगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा। ओके, उसको सिर्फ टच करके पॉइंट से निकल जाए, या फिर ऐसा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। 8.7a shows the velocity time will represent the motion of an object whose velocity is decreasing with time while देखिए ये इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जा रही है, और जो b जो होता है उसमें वेरिएशन आ रहा है टाइम के साथ। ओके, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, कभी ज़्यादा हो रही, कभी कम हो रही, ऐसे चलता जा रहा है। The times of arrival and departure of a train that reaches station A, B and C and the distance of the station B and C from station A are given। अब देखिए स्टेशन A गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम A किलोमीटर में दिया हुआ, टाइम अराइवल आवर्स में दिया हुआ, फिर टाइम डिपार्चर आवर्स में दिया हुआ है, जिसमें 8 बजे 8:15 से फिर वो रवाना होती है, कितना कवर करती है। फिर उसके बाद B पे डिस्टेंस 120 से 11:15 पे पहुंचती है, 11:30 से निकलती है, फिर 180 कवर करती है, फिर कितने बजे आती है? 1 बजे, 1 बजे से फिर 1:15 पे निकल जाती है। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, वो आप अपने आप करिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट।